Welcome students. Here we are continuing chapter 5th, that is organizing. We have discussed the different types of structure, and in this video we are going to study delegation of authority. Now what is delegation? Delegation means to distribute, to pass. And authority means the work which we are performing, the task which we are performing. And authority, power to take decisions. Now in every organization we see some persons are working, and we already have discussed that a single person cannot manage all the work. So managers are assigned lot of work, and manager alone cannot perform all the work. So if he cannot perform all the work, he divides his work among different individuals working under him according to their qualification and get work done from them. This thing is being done by manager. So manager begins with sharing of his responsibilities with his subordinates. Subordinates are who? The person who are working under him. Now he deliberately passes some of the responsibilities to his subordinates. Responsibility, we can say here, is his task. After passing the responsibilities, the manager also shares some of his authority. अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास करने के साथ साथ हमको अथॉरिटी भी पास करनी है, क्योंकि बिना अथॉरिटी के पास किए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट वर्क. नाउ व्हाट इज़ अथॉरिटी? अथॉरिटी है वी आर सीइंग द पावर टू टेक डिसीजंस विद द सबऑर्डिनेट्स so that the responsibilities can be carried on properly. Now to make sure his subordinates perform all the work efficiently and effectively, हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि subordinates are working effectively and efficiently as expected by the manager, which creates accountability. Now what is accountability? Accountability क्या होता है कि इफ़ यू हैव गिवन द टास्क टू कंप्लीट, तो उस टास्क को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो फॉर दैट यू शुड बी आंसरेबल कि वाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क, और अगर किया है तो हाउ यू हैव कंप्लीटेड इट. एवरीथिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी, एंड दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज डेलीगेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन डेलीगेशन एज process of entrusting responsibility and authority. Responsibility and authority दे करके किसी पे ट्रस्ट करो to the subordinates. किसको हम देंगे? अपने subordinates को देंगे if we are the manager. और उसके बाद accountability को create करेंगे on those employees who are entrusted responsibility and authority. उन employees के ऊपर accountability को create करेंगे जिसको हमने authority और responsibility दी है. In simple words, we can say that the downward transfer of authority from superior to subordinate. Delegation में हमने यही पढ़ा है, मैनेजर अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है अपने सबॉर्डिनेट से. तो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र, डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है अथॉरिटी का, दैट इज़ फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. Now we have already discussed that delegation is very important. Why it is very important? Because a single person cannot perform all the tasks. But delegation is not a process of abdication, which means accountability is absolute. जिसका मतलब ये होता है कि accountability absolute है, जो कि पास नहीं हो पाएगी या delegate नहीं हो पाएगी. delegate होती है, authority, accountability, everything is delegated. After creating accountability on subordinates, the superiors also remain accountable. अगर हमने subordinate को accountability दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम accountability से free हो गए हैं. जवाब हमको तब भी देना पड़ेगा अपने superiors को. If you are a superior, तब भी आपको अपने superior को जवाब देना पड़ेगा. For example, if the sales manager is assigned a target of selling 1000 units in 1 month, he divided his target among the 5 salesmen working under him. उसने क्या किया? अपने 5 सेल्समैन को 1000 यूनिट्स का टारगेट डिवाइड कर दिया. अब उसमें से पता चला कि 1 सेल्समैन फेल सिक, सो एट द एंड ऑफ 1 मंथ ओनली 800 यूनिट्स कुड बी सोल्ड. 800 यूनिट्स सेल हुई among that 1000.
इस सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर। अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की है, उसने काम को डेलीगेट किया है, पास किया है। काम को डेलीगेट करना इट डजंट मीन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। नो, although he has delegated or passed this target to subordinates, by passing or delegating the responsibilities, he cannot get rid of accountability. वो accountability से free नहीं हो सकता। He could have checked in between and supervised from time to time whether the work is going in the right direction or taken and not timely action. यानी कि उसकी ड्यूटी ये भी है कि जब उस 1000 यूनिट्स की सेलिंग हो रही है जो उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को दिया है करने के लिए, तो उसको बीच में ये भी चेक करना था कि वेदर द वर्क इज़ कैरिंग प्रॉपरली और नॉट बाय हिज सबॉर्डिनेट्स। उसको सुपरवाइज़ करना था टाइम टू टाइम कि वर्क इज़ गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो चुका है। और अगर वो कर लेता तो वो टाइमली एक्शन ले सकता था। तो एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी या अकाउंटेबिलिटी किसी को पास कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर स्टिल नॉट अकाउंटेबल। हमको भी अब किसी सुपीरियर ने काम दिया है एंड फॉर दैट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। So this is all about principle of accountability. Now the elements of delegation. Delegation is the downward transfer of authority. So the elements we are here studying, the process of delegation, how the delegation process is being completed. So here we are seeing 3 elements: responsibility, authority and accountability. What are the difference among these 3? Responsibility means to complete the work given on time, the work assigned to an individual. If you are assigned some work, some kind of work, then that work includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. और उस जॉब पोजीशन पे आपको रह कर के फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहना होगा रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा डेलीगेशन का प्रोसेस बिगिन तभी होता है जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पास करता है टू हिज सबॉर्डिनेट्स, जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेटेड हो सकती है, यानी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पास आउट करना है। नाउ feature is responsibility is the obligation of a subordinate. Obligation means very compulsory of a subordinate to properly perform the assigned duty. यानी जो मैनेजर ने ड्यूटी असाइन की है उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। ये अराइज कहाँ से होती है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से। कोई भी सुपीरियर हो अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता ही है, क्योंकि सबॉर्डिनेट इज़ बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय द सुपीरियर, क्योंकि सबॉर्डिनेट को उस ड्यूटी को परफॉर्म करना ही है विच इज़ गिवन बाय हिज सुपीरियर। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दैट फ्लोज अपवर्ड। वाई? बिकॉज सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, क्योंकि सबॉर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने सुपीरियर के लिए, इसीलिए ये हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है। Second is we are talking about authority that we have already discussed and we all know very well, the power to take decisions. Responsibility को carry on करने के लिए authority की भी ज़रूरत होती है। जब मैनेजर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करते हैं सबॉर्डिनेट्स को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो कुछ अथॉरिटी भी देते हैं। तो अथॉरिटी इज़ द सेकेंड स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकेंड वॉज अथॉरिटी। अथॉरिटी को जब हम शेयर करते हैं तो मैनेजर अपने माइंड में क्या रखता है? द अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिस चीज़ की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसी चीज़ की अथॉरिटी देनी है। जैसे मैंने 100 यूनिट्स के टास्क को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबल बनाया है किसी पर्सन को, तो उस 100 यूनिट्स को सेल करना है हमें, तो सेल करने से पहले प्रोडक्शन करना होगा एंड फॉर प्रोडक्शन वी रिक्वायर सम रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए to purchase some raw material the person requires some authority कि कितना रॉ मटेरियल लेके आना है, कितने सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स लेके आने हैं। तो
इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करके हमको उसको अथॉरिटी देनी है. दैट शुड बी डेलीगेटेड. दे शैल नॉट पास देयर अथॉरिटी